So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, today's our topic is pharmacotherapy for diabetes mellitus. Diabetic mellitus. You know the classification of diabetic mellitus very well. Just we have to how to treat the diabetic mellitus. It can be of oral anti-diabetic drugs, can be with insulin. So you can see in these two pictures, they are applying. One is female and the other is a male is taking insulin injected over the. So the female is suffering from diabetic, the gestational diabetic. So what's a diabetic mellitus? So a glycosylated hemoglobin, that is A1C level. What happens in we have to check mostly. हम क्या करते हैं, इसकी फास्टिंग चेक करते हैं और उसकी रैंडम चेक करते हैं. मगर बेसिकली जो इसके जो पैरामीटर है दैट हैज टू बी A1C, HA1C. उसी से देखा जाता है लेवल क्या था कि पिछले जो 120 डेज में व्हाट वाज द लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेनेंस, कितनी मेंटेन की गई थी. तो ग्लाइकोसिलेटेड जो है हेमोग्लोबिन, वो दे आर यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज. हमारे यहाँ क्या है, अब हमारे क्या करते हैं, फास्टिंग चेक करते हैं और उसमें मोस्टली व्हाट दे आर ग्लाइकोसिलेटेड जो है वो है A1C, द बेस्ट डायग्नोसिस उससे चेक की जाती है. इन एडिशन टू फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है. तो तब कंफर्म करते हैं कि क्या उनकी whether person suffering from diabetic mellitus or not. The primary metabolic goals for diabetic are an A1C if they're less than 7% is with. Now they also go for that A1C less than 7 plus a systolic blood pressure less than 130. So naturally the blood pressure has to be, that is secondary blood pressure, and a low density lipoprotein cholesterol less than 100. Mostly up to 150 उसमें होगा. So then they becomes a patient is thought to be a diabetic. So management of cholesterol इससे की जाएगी with statin drugs. Do you know about statin drugs? Anyone drugs that is statin? Atorvastatin. हाँ, lipid lowering drugs हैं. Statin दिया जाएगा. For and management of hypertension के लिए what angiotensin converting enzyme they have to do. साथ क्या दिया जाएगा? Statin, angiotensin converting ACE inhibitors and angiotensin 2 receptors plus blockers दिए जाएंगे. So for glycemic treatment goals should be individualized for patients. हर एक का different to different उसमें दिया जाता है. So sometimes with short duration of diabetes, long life expectancy and no significant vascular disease. अगर किसी को ये चीज़ साथ नहीं है तो उसकी expectation ज़्यादा है. Vascular disease में फिर क्या है? Macrovascular और microvascular है. Macrovascular है और micro है. Macro में क्या, आपकी जो veins हैं, arteries हैं, इसमें इनमें thickness आ जाती है. So that is macrovascular. Further up organ you can know about macrovascular. और peripheral जब न्यूरोपैथी है उसको हम कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर. सो जब क्या करना कि यू मस्ट हैव HbA1c 6 होगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी उसमें नो उसमें इट हैज टू बी कंट्रोल व्हेन HbA1c 6 होगा. कंसिडर इफ इट कैन बी अचीव्ड विदाउट इंक्रीजिंग हाइपोग्लाइसीमिया. साथ ही उसमें इसमें अनदर थिंग क्या, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जब व्हेन यू टेक इंसुलिन. तो 6 पे जब होगा HbA1c तो दैट कैन बी गुड कंट्रोल. फॉर पेशेंट एग्जिस्टिंग वेस्कुलर डिजीज, साथ साथ अगर वेस्कुलर डिजीज साथ हैं, देयर कैन बी मैक्रोवेस्कुलर और
microvascular disease. Sometimes they have with history of hypoglycemia or limited life expectancy हो सकती है for those with long-standing diabetes who have difficulty lowering the A1C. A less stringent goal should be. इसमें जो main चीज है, we have to maintain the HbA1c near 6. Near 6 पे अगर होगा आपके यहाँ गुड कर। हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि जिसकी फास्टिंग और अच्छा जो फास्टिंग हम चेक करते हैं दैट इज फॉर दैट सेम दैट टाइम, उस वक्त आपकी जो शुगर उसको हम कहते हैं दैट इज। जिस वक्त अगर मैं सुबह देखूंगा तो एट दैट टाइम सुबह 8 बजे तो माई शुगर वाज दैट। HbA1c आपको क्या बताता है, टेल यू अबाउट लास्ट 120 डेज। लास्ट 120 डेज में व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। अगर 6 आता है इट्स ए गुड कंट्रोल, एक 7 फिर 8 9 10, इफ 9 to 10 है देन इट्स ए नॉट ए गुड कंट्रोल। तो अक्सर 6 पे आएगा तो इट्स माइन इज मोस्टली अप टू 7 पे मेरा होता है। तो व्हेन यू टेक इंसुलिन इट मस्ट बी गुड HbA1c कंट्रोल होगा। Now what you have to do, साथ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एंड फिजिकल एक्टिविटी आर कॉर्नरस्टोन। साथ ये नहीं कि आपने समवन टेक इंसुलिन तब वो हर चीज खाएगा। न्यूट्रिशन जो आप कंट्रोल ये आपने साथ विद एक्सरसाइज करनी होती है। हाउ टू, जब भी आप कभी इंसुलिन पे देखेंगे थेरेपी में लिखा होगा यू मस्ट हैव डाइट कंट्रोल प्लस फिजिकल एक्टिविटी होगा, तो देन यू कैन अचीव दिस गोल। साथ आपने डाइट अपनी कंट्रोल करनी है और साथ एक्सरसाइज रखनी है, देन यू बेटर। जब भी कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फूड ज्यादा खा लेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू विद न्यूट्रिशन थेरेपी एंड फिजिकल एक्टिविटी, यू कैन कंट्रोल द HbA1c up to 6 or less than 6। साथ क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी परफॉर्म। साथ साथ जिस तरह ये यू हैव टू यूज ग्लूकोमीटर परफॉर्म बाय ऑल पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2, दे हैव टू चेक सेल्फ मॉनिटरिंग। साथ साथ अब तो एवरीवेयर इज देयर इज ए ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आ गए हैं तो अब सुबह की अच्छे उससे है। लास्ट टाइम मैं याद है अगर आपको मैंने पूछा था हॉस्पिटल फार्मेसी में कि उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है ग्लूकोज स्ट्रिप में, किसी को याद है? Who knows that chemical used for NS glucose, for glucose strip में कौन सा केमिकल यूज होता है, कुछ मालूम है आप लोगों को? कौन बताएगा मुझे? भूल गए सारे। सो साथ क्या है पर्टिकुलर? Sir, it was an enzyme. जी हाँ, दोबारा बोलेंगी? स्पीक अगेन। सर एंजाइम था लेकिन उसका नाम याद नहीं वही आ तो रहा। मैं पूछ रहा हूँ, वही तो असल कहानी है। यू मस्ट नो एंजाइम ही तो बताओ, तो मुझे पता है। ढूंढ के फिर मुझे मैसेज कर देना। That can cause hypoglycemia or those engaged in self-management. The key of self-monitoring blood glucose is to educate. इसमें खास तौर पेशेंट को समझाना पड़ता है कि हाउ टू गेट, जो आपने जो ग्लूकोज लेवल किस तरह उसको नॉर्मल रखना है। मस्ट बी, ये क्या कि इससे ऑटो टीचिंग है, खुद बहुत आपको साथ साथ मालूम होता है हाउ टू कंट्रोल। मोस्टली क्या था कि पेशेंट उसमें नहीं करते। एक दफा वो हमारे पेशेंट थे, 2 सक्खर से आए थे, तो मेल साइड में वो हस्बैंड था और फीमेल साइड में उसकी बीवी थी, दोनों। अब वो शुगर वाज वेरी हाई। किसी सफारी से आए तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों है, वो कहते हैं हमने अम्ब खाए थे। तो मैंने कहा आप आम आम न खाएं, अब अभी इसका उसका आम का सीजन आ गया है और मेरी पैदाइश उस इलाके से है जहाँ पे आम बहुत होते थे। अब मैं बहुत कम आम खाता हूँ और उस वक्त मीरपुरखास में आम ही आम होते थे और हम सारा दिन आम खाते थे। तो अब मुझे, अब मैं आम, आई डू केयरफुल व्हेन आई यूज्ड टू टेक मैंगो, मगर फिर भी किसी वक्त जोश आ गया, ज्यादा खा लिए। देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंक्रीज माय इंसुलिन यूनिट्स। मैं फिर वो बढ़ा लेता हूँ, तो वो जस्ट आई हैव टू उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वो जब मियाँ बीवी से पूछा, वो कहते हम आम खाए थे तो हमारी शुगर बढ़ गई। तो देर बाद उसको जो अगला जो स्टेप होता है कीटोन एसिडोसिस आ जाता है उसका।
इतनी लेवल 400-500 पे उनकी थी। तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू कंट्रोल। आप जब काउंसलिंग करेंगे, व्हेन यू हैव टू गोइंग टू काउंसिल द पेशेंट, हमको समझाएंगे कि व्हाट यू हैव टू टेक द डाइट, हाउ मच कैलोरीज यू हैव टू नीड। मोस्टली 1800 होती हैं उस लेने के लिए। तो इसमें उसको टीच, साथ ही सेल्फ मॉनिटरिंग, साथ व्हाट दे हैव टू डू, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज साथ साथ चेक करें। मेरा तब चूंकि कई सालों से है तो आई नो कि कब मेरी रेज होती है कब नहीं होती है। आई मस्ट कीप डाइट। अभी मेरे पास नाश्ते में कुछ चीज़ें मैंने भी खा ली हैं, कुछ आई हैव टू टेक वेट। तो आहिस्ता आहिस्ता व्हाट वी हैव टू डू, स्लो स्लो डाइट ली जाती है, कम खाया जाता है इसमें, जस्ट टू कंट्रोल। क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा मील। आप 3, 4 या 5 दफ़ा मील करें, थोड़ा उसको ब्रेकअप कर लें, एक ही वक्त में सारा खाना ना खाएं। तो ये पूरा इसमें गाइडेंस बताई जाती है। पर क्या होता है कि पेशेंट्स केयर नहीं करते, देन देयर आर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो फिर सिंड्रोम्स हैं, वो फिर बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपके आसपास कोई हो, पेशेंट को गाइड करें। आपके घर में आपके बड़े अक्सर कोई डायबिटिक होंगे, एक खास बात, उनको जब खाते हुए टोके ना, अक्सर टोकते हैं उससे भी लेवल बढ़ता है। आसानी से उसको समझाएं कि ये चीज़ को या ये चीज़ आपके लिए मुफीद नहीं है। आसानी से काउंसलिंग करें, ना कि उसके बाबा क्यों खा रहे हो, डांटते हो, नो। उसको बड़ा आसानी से बताया जाए कि नहीं, इट्स इंजूरियस फॉर यू, हैजर्ड्स फॉर यू, आपके लिए ये नुकसानदेह है। तो ज़रा सा उनको केयरफुल हो जाना चाहिए। तो अगर अच्छे समझदार पेशेंट होंगे तो दे विल वेल कंट्रोल उनकी होती है। मैं अब कई सालों से हूँ, आई कैन डू, मैं शायद वॉक भी करता हूँ, साथ डाइट कंट्रोल करता हूँ, एंड आई एम ऑल राइट। सो बेसल बोलस इंसुलिन रेजिमेंट शुड बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज। उनको तो आपने देनी है। टाइप 1 में आपको मालूम है कि उनके इंसुलिन सेंसेस नहीं हो रही है, बाय इधर मल्टीपल डेली इंजेक्शन और बाय इंसुलिन पंप से दी जाएगी। बेसल बोलस इंसुलिन दोनों, अभी दो चीजें हैं, बेसल भी दी जा रही है, बोलस भी दी जा रही है। इफेक्टिव फॉर पेशेंट, इसमें आपने बेसल भी देना, शॉर्ट एक्टिंग भी देनी है, लॉन्ग एक्टिंग, दोनों की बात है। बोलस आपने शॉर्ट एक्टिंग देना, बेसल जो आपने बेसल जो देनी है। जैसे मैं एक लेता हूँ लेंटस ग्लार्जीन जो है, दैट इज ए बेसल। वो आपकी बेसल जो आपके नेचुरल उसको साथ साथ प्रोड्यूस करती है, बेहतर करती है। साथ बोलस में शॉर्ट एक्टिंग साथ ऐड करनी होती है। आफ्टर एवरी मील, बिफोर एवरी मील यू नीड अ बोलस साथ। अगर सिर्फ एक ही आप उस पर रखेंगे बेसल पे, यू कांट कंट्रोल। व्हाट द पीपल हैव टू डू, दे इंसुलिन के साथ शॉर्ट एक्टिंग प्लस दे टेक ओरल मेडिकेशन साथ लेते हैं। इधर डू विद ओरल मेडिकेशन और इधर यू टी बेसल साथ लेंगे। जो लॉन्ग एक्टिंग है दैट इज ए बेसल, जो आपकी नेचुरल से उसको कहते हैं बेसल जो है। व्हाट्स ए बेसल एंड व्हाट्स ए बोलस आपने साथ बढ़ा लेनी। शॉर्ट एवरी मील के साथ, बिफोर दैट मील यू हैव टू टेक शॉर्ट एक्टिंग। उससे क्या होता है कि जो आपने फौरन जो आपकी एब्जॉर्प्शन उसको स्लो कर देगी, शुगर लेवल आपका कंट्रोल होगा। The patient with type 2 diabetes who no longer are able to achieve नहीं होता, तो एक्चुअली क्या होता है कि दे मस्ट टेक दोनों लेंगे, देन दे हैव टू कंट्रोल द शुगर लेवल। आपको समझ आई बात बच्चे, बेसल और बोलस की? इज इट क्लियर? यस सर। लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग दोनों आपने ऐड करनी होती है। शॉर्ट एक्टिंग विद एवरी, जो आप जब आपको दिए तो ड्रग्स का मालूम होंगे, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग्स हैं और लॉन्ग एक्टिंग कौन सी इंसुलिन है। अगर मोस्टली द बेस्ट ट्रीटमेंट इज फॉर इंसुलिन दिया जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, ये जो ओरल है, यस यू कैन डू, कुछ अरसे तक तो रखें, फिर इसकी जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ओरल के। आपका HbA1c तो आपको 6 पे दिखा रही है, मगर साथ साथ उसके जो अपने साइड हैं वो ज़्यादा डिट्रेट करते हैं बॉडी को। मेरे से खुद था जब बिफोर इंसुलिन मेरी, आई कांट टेक क्लास फॉर मोर देन 20 मिनट्स, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मसल वीकनेस इतनी हो गई थी। देन आई गो फॉर फिजियोथेरेपी, देन आई स्टार्ट इंसुलिन। मैंने अपने डॉक्टर के आप तो मेरे इंसुलिन बढ़ा दो, इंट्रोड्यूस करा दें। इंसुलिन के कंसिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। इसके जो एक्चुअली हाइपो का जो है ना, एट वंस होता है हाइपो इसमें। तो मैं इसलिए अपने साथ आई यूज टू कीप दैट वन, जो स्वेटनर साथ में होता है। आज के रात मेरे गुड़ होता है या मेरे पास वो शहद होगा। इन द नाइट व्हेन आई वेक अप आई यूज टू टेक 1 or 2 सिप ऑफ दैट हनी वाटर, और इधर आई कीप गुड़ में साथ रखता हूँ। तो जस्ट आई फील दैट देयर आई एम गोइंग टू बी लिटिल हाइपो, आई यूज टू टेक एक्स्ट्रा स्वेटनर। थोड़ा सा साथ लेने से क्या होता है कि
आसानी हो जाती है। तो इसमें ये ख़ास प्रॉब्लम है कि एडवांस हाइपो हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए यू मस्ट कीप योर स्ट्रेटनर विद यू, ये साथ जरूर। अदरवाइज इंसुलिन कोई मुश्किल नहीं है, हाउ टू मेंटेन इसको, ये ज़रा मुश्किल होता है मेंटेन करना इंसुलिन के साथ। इफ़ यू मस्ट एजुकेटेड है तो देन यू कैन हैव बी ऑन इंसुलिन। नॉन एजुकेटेड है तो वो दे कीप टू नो दैट इंसुलिन लेते हम ठीक, नो, इंसुलिन के लास्ट भी रिस्ट्रिक्शन सेम है, डाइट रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, देन यू हैव टू हैव बेटर जो HbA1c आपका तब 6 पे आगे जब आप ये चीज़ें साथ रखो। मेरा अक्सर 7 के आसपास होता है, स्टिल आई एम गोइंग टू कंट्रोल, इट मस्ट बी 6 पे क्या होता है, देयर आर चांसेस हाइपो हो सकते हैं, तो यस 6 7 6.5 हो तो देन यू आर क्वाइट, आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अब साथ क्या की फर्स्ट थेरेपी थी इसमें ओरल में, वो दैट वाज मेटफॉर्मिन। विल टेल मी द ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन? ग्लूकोफेज। 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 हाँ जी, शाबाश बच्चों, ग्लूकोफेज। हसनैन आपको पता है ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन को कहते हैं? नो, आमिर? So first was metformin is the first line therapy for type 2 diabetes। शुरू में की patient has a contraindication to its use or unable to tolerate this, तो सबसे पहले they are on for metformin पे रखे जाता है patients को। Added a diagnosis along with lifestyle changes। Monotherapy, a second antidiabetic agent should be added to the regimen। ये क्योंकि short acting है, early लिया जाता है, thrice a day है, then you need it सेकेंड एंटीडायबिटिक एजेंट साथ आपने ऐड करना है, मे बी लॉन्ग एक्टिंग ओरल में देंगे आप। A second antidiabetic agent should be added to the regimen। Patients HbA1c goal, the amount of reduction is required, the patient's kidney and liver function, medications effects and cost of therapy can be improved। अगर ज़्यादा होगा तो there are chances of kidney and liver dysfunction and that can be possible। It must be controlled with the medication। Factor of concern include the patient's A1c goal, the amount reduction in A1c required, the patient's kidney and liver function भी साथ साथ चेक करें, with medication side effect and cost of therapy। cost में क्या होता है कि लोग इस पे ये compromise कर जाते हैं दवा खाते हुए, इसमें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली अब तो ड्रग्स काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो समटाइम उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं और नहीं लेते वक्त पे। या मेरे अपने कोलीग थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थे मेमन साहब, लास्ट टाइम जब उनको मिला तो मुझे कहता कि इसमें बहुत महंगी है, मैं लेता नहीं हूँ। बच्चे उसके पढ़ते थे और वो फिर कार्डिक बाईपास पहले हो चुका था, फिर वो बेचारा कुछ अर्से बाद वो 2011 की लास्ट ईद उनसे मिले, वाज माय गुड फ्रेंड। तो वो इस तरह केयर नहीं करते थे, समटाइम स्किप करते थे इंसुलिन को। तो होता कि कॉस्ट ज़्यादा होती है आजकल। अभी इस वक्त भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इट्स क्वाइट कॉस्टली, मुझे चूँकि वो मेडिकल अलाउंस मिलता है साथ, तो इसलिए आई कैन परचेज। तो इस पे खास बात है, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन मेडिकेशन। पेशेंट अक्सर स्किप कर जाते हैं दवा लेते हुए। इफ़ यू टेक प्रॉपरली मेडिकेशन यू फील आपका HbA1c कंट्रोल रहेगा। सीवियरली अनकंट्रोल सब समटाइम मोर देन 10 चला जाता है, व्हेन इट इज मोर देन 8.5 9 ऑलरेडी ऑन कॉम्बिनेशन ओरल थेरेपी, तो सो देन दे हैव टू गो फॉर इंसुलिन पे आ जाना चाहिए। इफ इट इज मोर देन 9 या 10 है, और कॉम्बिनेशन ओरल थेरेपी भी जो अक्सर दैट कैन भी, जब ओरल थेरेपी में HbA1c ज़्यादा रहता है। आजकल नई ड्रग्स आ गई जिससे थोड़ा बहुत बेहतर, उसके जो कंसिक्वेंसेस डिफरेंट हैं, दे हैव मोर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ज़्यादा है, कार्डिक उसमें प्रॉब्लम है, किडनी में उस पर इफेक्ट है। इफ यू टेक इंसुलिन इसके लेस साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू ओरल थेरेपी। Concern about the effects of hypoglycemia and new trials in a lack of benefit of very tight glucose control in actually ill patients। The current अब जो हम कहते हैं 140 से 180 के दरमियान मेंटेन इट इज गुड। आजकल हम कहते हैं अक्सर, इससे पहले क्या था, कहते नहीं यू मस्ट कीप 140। आप अपना एवरीवन हैज टू गो एंड चेक, आप करके मुझे कल भेजें कि आपको कितना। एनीवन हैज फैसिलिटी टू चेक द ग्लूकोज? कहीं किसी के पास ग्लूकोमीटर है? किसी घर में आसपास एनीवन हैज ग्लूकोमीटर?
यस सर। Yes, sir. कोई भी है आप चेक करके जरा मुझे भेजेंगे आपकी ग्लूको आम रैंडम कितनी आ रही है, और संभालूंगा इट इज लेस देन 120 130 140 आपको, क्योंकि मैंने जो पेनक्रियाज इज वर्किंग, तो आपकी शुगर एवरी टाइम इट ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। तो आप देखेंगे आपकी जो शुगर लेवल कितना है, 130 है 120 है, रैंडम व्हेन यू हैव टू टेक फूड आप ले रहे हैं, तो देखें कितना आता है, उससे मालूम हो जाएगा कि आपका जो पेनक्रियाज इज वर्किंग, दे आर सिंथेसिंग इंसुलिन आपका बन रही है। जरा ये जो भेजेंगे मैं देखूंगा क्या सूरत, मुझे पता लगे कि हाउ मच इट हैज टू बी कंट्रोल, आपकी कितनी इंसुलिन है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि उसमें क्या कहते हैं, जो टाइप 1 तो नहीं किसी को। तो ये आप नोट कर कल मुझे भेजेंगे आपकी कितनी रैंडम कितनी इंसुलिन है आफ्टर मील, देखेंगे। हसनैन आपने हर हालत में भेजनी है, ठीक है। अच्छा, owing to concern about hypoglycemia and ये हो गया। तो अब जो हम अक्सर 140 to 180 रहे तो यस यू आर पाए, मेरे कब तो 220 पे हो जाती है, पर मोस्टली अब इट मे बी 140 160 180, अर्ली इन द मॉर्निंग 120 भी फास्टिंग आ जाती है, बट आई हैव टू कीप कंट्रोल। तो आपकी जो अक्सर आप रखते हैं कि इतना टाइट भी ना करें कि उसको 140 से नीचे रखें हर वक्त, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट मस्ट बी 140 टू 180 जो है पेशेंट्स की रहे, तो यस वो नॉर्मल है, उसकी है वो ठीक है, उसके ऑल जो ऑर्गन्स हैं दे वर्क प्रॉपरली। इफ वैसे 240 तक भी कहते हैं कि ठीक है पेशेंट्स की हो, तो दैट इज कंट्रोल 240, मगर एक मस्ट भी एक अच्छी जो गुड कंट्रोल है, मस्ट 140 टू 180 होनी चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक बिट ऑफ फूड, थोड़ा थोड़ा खाएं आप, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू टेक, वो चीज़ खाएंगे जिससे एब्जॉर्प्शन फास्ट ना हो। अगर आप जैसे ब्राउन ब्रेड लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होती, इस तरह अगर आप चक्की का आटा लेंगे उसमें चूंकि छाण साथ होता है तो वो एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होगी, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। पराठे, फाइन आटा, ये जब खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। फॉरन विद इन हाफ एन आवर यू कैन चेक योर शुगर, इट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। तो यू मस्ट हैव कीप, उनको जो भी आपके घर में या आसपास उनको समझाएं, दे मस्ट टेक डाइट। खास कभी दावत में जाते हैं तो वहाँ केयरफुल होकर खाएं। हम ज़्यादा खा लेते हैं फिर हम कहते हैं अब मेरी कंट्रोल नहीं है। सबसे जो मुश्किल होता है, जो अटेंडेंट होते हैं, जो घर वाले, वो परेशान होते हैं ज़्यादा व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक। मैंने यही देखा है, उनको परेशानी होती है। और फिर आगे जाके फिर क्या होता है कि पेशेंट के जो इम्पुटेशन हो जाती है लेग की, क्योंकि जब वो इसमें आ जाता है गैंग्रेन, जब गैंग्रेन आ जाता है तो देन दे नीड एम्पुटेशन साथ की जाती है ऑर्गन। दैट्स व्हाई यू हैव टू टीच काउंसल द पेशेंट, दे मस्ट कीप डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड टेक properly medication. To understand medication properly, diet control and exercise. चलना फिरना जरूरी है, वॉक शाम करें, वो देन वी हैव प्रॉपर आपकी एक यू कैन लिव विद नॉर्मल लाइफ आप एंड विद लॉन्ग। मेरे कई वाकफ हैं, मेरे वाले साहब के दोस्त अभी तक वो 30-40 साल से दे आर ऑन इंसुलिन एंड दे आर फिट, 80-90 साल के हो गए हैं। मेरे अपने प्रोफेसर है, 87, वो भी कई सालों से ही इज यूजिंग इंसुलिन प्रॉपरली और बड़ी सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा रही है। तो जस्ट यू हैव टू, ये साथ समझाना होता है कि दे मस्ट टेक प्रॉपर डाइट जो उसके मुताबिक हो, मेडिकेशन एंड देन दे एक्सरसाइज। शाम को कुछ देर वॉक करें, उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो इंसुलिन की जो बेसिकली वो कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि रेजिस्टेंस आगे जब उसमें जब आप डिजीज पड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन आपकी बॉडी के साथ। In acute hyperglycemic crisis can occur in patients with diabetes. Most morbidity and mortality occurs over the course of years and can be as either due to microvascular. Then in microvascular you have nephropathy, neuropathy या retinopathy. आँख प्रॉब्लम होगा, आपकी जो पेरिफेरल नर्व है उसमें प्रॉब्लम, नर्व में प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम हो। खास तौर इसमें जो ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, रेटिना, रेटिनोपैथी आँख में, न्यूरोपैथी आपके नर्व में आपके जो है, एंड देन नेफ्रोपैथी आपके जो किडनी, इनमें प्रॉब्लम होगा। कंटिन्यूस टू हैव हाइपर,
इफ हाइपर शुगर रहेगी तो इन ऑर्गन्स में यू मस्ट हैव इम्यूनिटी। यस, एक वक्त तक तो बॉडी हैव टू कंट्रोल, देन इज गोइंग टू आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आपके किडनी फेलियर होगा, नर्व एंडिंग प्रॉब्लम करेंगे, और ब्लाइंडनेस होगा, रेटिनोपैथी होगी। और मैक्रोवेस्कुलर कोरोनरी, मैक्रोवेस्कुलर में क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है। अब यू अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। जो आपके हार्ट जो है ऑर्गन है, ब्रेन है, स्ट्रोक है, दीज आर द चांसेस when there the patient remain hyperglycemic, there can be microvascular and macrovascular disease होंगे। Patient with established vascular disease should remain on lifelong aspirin therapy, साथ एस्पिरिन दी जाती है। एस्पिरिन का क्या फंक्शन है यहाँ पर? एंटीप्लेटलेटिन। जी हाँ, एस्पिरिन साथ लेनी होती है। पर वो मैं एक दफा बैठा था अपने प्रोफेसर साहब, वो कहते थे कि इस तरह व्हाई नॉट वी हैव टू ऐड, जो पानी की मेन टैंक है उसमें डाल दी जाए और लें, इट हैज अ माइल्ड एक्शन। पर एस्पिरिन हम यस, ये रिसर्च में आया था तो यूज किए जाते हैं। वो दे वर सेइंग दैट कि इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, पर यस पीपल आर यूजिंग, लेते। इसमें फिर क्या चागली जो इसमें खास एस्पिरिन की जो इसकी जो फॉर्मुलेशन को हम क्या कहते हैं, किस तरह की कोटिंग की जाती है इसकी, ये तो आपको मालूम होगा एस्पिरिन पे। What type coating we have to do is एस्पिरिन पे हम कौन सी कोटिंग करते हैं? इंटेरिक कोटेड। हाँ शाबाश, एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग क्यों एंटेरिक कोटिंग करते हैं? ताकि वो स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय ना हो। नहीं, इसकी हैजर्ड क्या है एस्पिरिन का? सर अल्सर कॉज करवा अल्सर Ulcers, कॉज करती ulcers को है। दैट्स व्हाई इट हैज टू डिसइंटीग्रेट इन दिस इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो वो जितने आप जब इसकी कोटिंग आप पढ़ेंगे, एंटेरिक कोटिंग कितने लेवल हैं, तो उसको जो आपके जो एंजाइम इन स्टमक है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उससे दैट सेवली पास ऑन टू द इंटेस्टाइन में चली जाएगी और वहां जाके डिस्टिंग होगी, तो उससे स्टमक में जो गैस्ट्राइटिस या अल्सरेशन नहीं होगी। तो वो लेने से क्या, इट मस्ट बी एंटेरिक कोटेड होगी। इज इट क्लियर? हसनैन, आपको मालूम होगा कि एंटेरिक कोटेड क्यों करते हैं? लगता है हसनैन का माइक बंद है। वॉइस में से और कौन है इस वक्त लाइन पे? आमिर, यू नो दैट वन? नोमान, नोमान, आर यू देयर? जी सर। हाँ, व्हाई वो एंटेरिक कोटेड की जाती है एस्पिरिन पे? सर अल्सर कॉज करती है। क्या? एस्पिरिन। एस्पिरिन, शाबाश, दैट्स व्हाई एंटेरिक कोटेड की जाती है। आप इंडस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरह इसको कवर अप किया जाता है। सो दे नीड एस्पिरिन साथ ली जाती है पेशेंट विदाउट एस्टैब्लिश्ड वेस्कुलर के साथ, प्रोफिलैक्सिस के लिए ऐड कर ली जाती है एस्पिरिन। सो इनके आपस में जो सेकेंडरी जो साथ हाइपरटेंशन होगा या स्ट्रोक, दैट चांसेस विद डायबिटीज इफ इट इज नॉट कंट्रोल, अगर उसका HbA1c मोर देन 6 जा रहा है, देयर आर चांसेस microvascular complication has a strong correlation with long-term glycemic control. तो अगर if it is बेहतर रहेगा तो ये there are less chances of these, still there are chances but there are less chances हैं if it is controlled under 6. So macrovascular complications are influenced by glycemic control but are more dependent on multiple etiologic factors. डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये भी साथ अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसका कंट्रोल सही नहीं होगा। हाइपरटेंशन साथ है, स्मोकिंग साथ है, अल्कोहल है, ये चीजें अगर साथ तो फिर देयर विल बी नो गुड कंट्रोल एंड देयर कैन बी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। Absolute lack of insulin or relative lack of insulin is a result of impaired insulin secretion. जब कम इंसुलिन सिक्रेशन होगी या नहीं होगी तो then they cause diabetes. तो अगली क्लास में फिर बात करते हैं आपसे 10 मिनट, ठीक है बच्चों?